اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، رہ، ڑ، کھ، گھ، لہ، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو،
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। मुतालिकाते फेल। बात कहने के लिए एक सलीका चाहिए, काम करने के लिए एक तरीका चाहिए, और अगर ये नहीं है तो बात बेमहल, काम बेढंगा। यहां कम से कम 9 मुतालिकाते फेल हैं। जूं तू, अचानक, बार बार, मिनो अन, मिन ओ अन, बिल्कुल, सचमुच, फौरन, एकाएक और थोड़ा बहुत, हाँ हाँ है। इसी तरह नहीं नहीं, इसी तरह शायद है, गालिबन। आप इनकार कर भी रहे हैं, इकरार कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। यकीनन, यानी आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि जी हाँ, बेशक, ये भी पूरे यकीन के साथ कहा जा रहा है। हरगिज, अलबत्ता, दर हकीकत। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मकदम है। हम देख रहे हैं मुतालिकाते फेल। किसे कहते हैं मुतालिक़े फेल? मुतालिक़े फेल वो लफ्ज़ है जो अगर जुमले में इस्तेमाल किया जाए तो उससे फेल की मज़ीद वजाहत होती है और बात में ज़ोर पैदा होता है। यह सिलसिला पिछली 2 क्लासों से जारी है, आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो चलें। मुतालिकाते फेल। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि कलम मुंह में ना रखा करो। देखिए, मैंने अभी एक जुमला कहा, मैं उस जुमले को यहां लिखूंगा, उसके बाद आपसे बात होगी कि मैं ने कितनी बार कहा कि कलम को मुंह में ना रखा करो। मैंने कितनी मर्तबा कहा कि कलम को मुंह में ना रखा करो। इसमें रखने का काम, रखना एक काम है और इसका ताल्लुक पैदा हो रहा है कितनी बार से। तो काम कर रहे हो और मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तो यहां कहा का ताल्लुक भी कितनी से पैदा होता है। मैंने कितनी बार कहा, तो अब आप को समझने में यह दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसे मुतालिकाते फेल के बारे में कहने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक अदद या नंबर से है। आप भी कई मर्तबा इस्तेमाल करते होंगे आदात को, नंबर्स को। मसलन हजारों बार देखा है, सैकड़ों बार सुना है, हजारों बार, सैकड़ों बार, अरे लाख समझाया उसे, समझता ही नहीं है। समझाने का ताल्लुक अदद से है कि लाख बार समझाया, देखने का ताल्लुक हजार से है कि हजारों बार देखा, इसी तरह सैकड़ों वगैरह। गौर कीजिए, हम अपनी रोजाना जिंदगी में ऐसे कई जुमले बोलते हैं जिनमें अफाल या फेल या वर्ब या काम
का ताल्लुक किसी ना किसी अदद से पैदा हो जाता है। आपको सिर्फ इसका शऊर हासिल होना है कि हम इस तरह के जुमले भी बनाते हैं। मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई है। अब हम वही करते हैं जो हम पिछली दोनों क्लासों से करते आए हैं। मैं यहाँ कुछ मुतालिक़ात फ़ेल प्लाज्मा पर दिखाऊंगा, आप उन्हें पढ़िए और उसमें से एक एक मुतालिक़ फ़ेल का इंतखाब कीजिए और उससे जुमला बनाइए। यहाँ देखिए, एक एक, दो दो दो, चार चार चार, इतना उतना जितना वगैरह। इनमें से इतना उतना जितना आदात के अलावा मकदार के लिए भी है। आप इनमें से कोई एक मुतालिक़ फ़ेल चुन लीजिए और उससे बनाइए जुमले। तो आप तैयार हैं? चलिए आगाज करते हैं। इधर से आप में से कोई? सर, हाँ बताइए इकबाल। मैं लफ्ज एक एक ले रहा हूँ। जुमला बनाइए। मैं एक एक को देख लूंगा। मैं एक एक को देख लूंगा। जुमला सही है मगर एटीट्यूड गलत है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एक एक को देख लूंगा। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि मैं एक एक से बात कर लूंगा। ये कह सकते हैं कि मैं एक एक की मदद करूंगा, मैं एक एक से मोहब्बत करूंगा। इस तरह के जुमले बन सकते हैं। जुमला वैसे सही है आपका, एटीट्यूड थोड़ा बदल लीजिए, आज जरूरत है उस चीज की। इधर हो गया, इधर कोई बताएगा? सर, हाँ ज़बीहुल्लाह बताइए। मैं लफ्ज दो दो लूंगा। आप लेंगे लफ्ज दो दो, हाँ ठीक है। जुमला बनाइए। दो दो बातें कर लें। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, दो दो बात कर लें। आइए बैठिए, दो दो बात कर लें, काहे का झगड़ा, जरा बात तो कर लीजिए। अच्छी, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है। एक आध और भी हो सकता है, कौन लेगा? सर, हाँ बताइए। 20-50 वगैरह भी तो इस्तेमाल होते हैं। हाँ बिल्कुल सही जमाल, इसमें के 20, 50 और इस तरह के जितने आदात हैं सब इस्तेमाल होते हैं। जैसे 20 मरतबा मैंने कहा, 20 कहते हैं। आप कोई जुमला बनाइए। 50 मरतबा मैंने समझाया है। हाँ 50 मरतबा मैंने समझाया है। कहना यह है कि ये जो हमारे पास आदाद हैं 10, 20, 50 वगैरह, या दर्जन भी बोलते हैं। कहते हैं कि उसने दर्जनों किताबें लिखी हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं, ये भी एक नंबर है। तो 50 मरतबा मैंने समझाया है, आपकी मिसाल बिल्कुल सही है। तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुतालिक़ात फ़ेल ने फ़ेल को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज नंबर भी हो सकते हैं, आदात भी हो सकते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी बात में जोर पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये रहे चंद एक मुतालिक़ात फ़ेल जिनका ताल्लुक़ आदात या नंबर से था। अब हम कुछ ऐसे मुतालिक़ात फ़ेल देखेंगे जिनका ताल्लुक़ सबब या वजह से है। इसके अलावा हम देखेंगे तकरार लफ्ज़ी से बनने वाले मुतालिक़ात फ़ेल। तो चलें। एक जुमला है जो आप और हम कभी कभार कहते हैं, और वो जुमला मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए उसे। आप एक अच्छे फनकार हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं। या आप एक अच्छे फनकार हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, या हम ये भी कहते हैं कि आप एक ईमानदार दुकानदार हैं, जैसी ज़रूरत वही कहते हैं।
और उसके साथ ये भी कहते हैं कि इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं। यहां दो जुमले हैं, आप एक अच्छे फनकार हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं। एक जुमला दूसरे जुमले के जवाब में है। जुमला यह है कि मैं आपकी इज्जत करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए कि आप एक अच्छे फनकार हैं। तो ये इसलिए क्या है? ये इसलिए सबब है, आपके काम का सबब है, आपके इज्जत करने के काम का सबब है। क्यों इज्जत करते हैं? इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे फनकार हैं, आप एक अच्छे दुकानदार हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं, आप एक अच्छे मालिक मकान हैं वगैरह। तो हम कुछ मुतालिकात फेल इस्तेमाल करते हैं सबब बयान करने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ बयान किया। अब आप गौर कीजिए, क्या हम सिर्फ इसलिए ही कहते हैं सबब बयान करने के लिए, या कुछ और अल्फाज भी हैं हमारे पास? जैसे हमारे पास है क्योंकि और चुनांचे, यह भी सबब बयान करने के लिए ही है। देखिए, और इनमें से एक आध को लीजिए और कोई जुमला बनाइए आप। सर, क्यों कैसे बनाओ? हाँ बताइए। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो क्योंकि यह सबसे बड़ी इबादत है। जी हाँ, बहुत उम्दा जुमला आपने बयान किया, और यह है कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो क्योंकि ये सबसे बड़ी इबादत है। यहां देखिए, ये दो जुमले हैं, ये सबसे बड़ी इबादत है और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, और इन दो जुमलों को मिला रहा है एक मुतालिक फेल, और वो है क्योंकि। ठीक है, तो एक ऐसा मुतालिक फेल है जो कोई सबब बयान कर रहा है और दोनों जुमलों को मिला रहा है। आपने बड़ी अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश की है। चलिए, एक और लफ्ज़ है हमारे पास, और वो है चुनांचे। क्योंकि और चुनांचे पर कौन बनाएगा? हाँ, जो बनाइए। क्यों नहीं सर, अदालतों में एक जुमला कहा जाता है, जी हाँ, आप बेकसूर हैं, चुनाचे आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जुमला कुछ इस तरह है वो कि आप बेकसूर हैं। जी हाँ, आप बेकसूर हैं। अब देखिए, चुनांचे आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। दो जुमले हैं यहाँ भी, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आप बेकसूर हैं। आपको बाइज्जत बरी किया जाता है क्यों? क्योंकि आप बेकसूर हैं। तो ये जो मुतालिक फेल है वो भी किसी के सबब को बयान करता है। तो ये रहे मुतालिकात फेल, इसलिए, लिहाजा, क्योंकि, चुनांचे वगैरह। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे मुतालिकात फेल जो तकरार लफ्जी से बनते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, तकरार लफ्जी। सर, तकरार लफ्जी किसे कहते हैं? हाँ, ये सवाल जरूरी था, अच्छा किया आपने पूछ लिया। तकरार लफ्जी किसे कहते हैं? जब हम किसी लफ्ज को दो बार बोलते हैं और उससे कोई मखसूस माने मुराद लेते हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं तकरार लफ्जी। जैसा कि अभी किसी ने एक मिसाल दी थी कि मैं एक एक को देख लूंगा, हमारे इकबाल ने कही थी। इसमें देखिए, एक लफ्ज को दो बार कहा है, एक 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 एक, इसे कहते हैं तकरार लफ्जी। या उनके बाद दो दो बातें कर लेंगे, ज़बीउल्लाह ने कहा था
दो दो बातें कर लेंगे। अब देखिए, दो लफ्ज को दो मर्तबा इस्तेमाल किया गया है, तो जिस लफ्ज को हम दो बार कहते हैं उसे हम कहेंगे दो दो लफ्ज तकरारे लफ्जी। ठीक है। उर्दू में कई ऐसे अल्फाज हैं जिनको दो दो बार कहकर नए नए मानों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं और मानों में जोर पैदा करते हैं। कई ऐसे अल्फाज हैं हमारे पास। एक नजर आप प्लाज्मा पर डालिए और देखिए, यहां एक लफ्ज है रफ्ता रफ्ता, दो बार रफ्ता को इस्तेमाल किया गया है। रोज रोज, खुशी खुशी, घड़ी घड़ी, आहिस्ता आहिस्ता, चलते चलते, वगैरह वगैरह। अब आप लोगों की बारी है, इनमें से एक आध का इंतखाब कीजिए और बनाइए जुमले। सर मैं लफ्ज रोज रोज लूंगी। आप रोज रोज को लेंगी? रोज रोज की दिल लगी अच्छी नहीं। जी हाँ, बहुत अच्छे। रोज रोज की दिल लगी अच्छी नहीं। अब इसमें लफ्ज रोज को दो बार कहा गया है, रोज रोज की। अब इसके पीछे पूरा पस मंजर मौजूद है। रोज रोज मतलब है कि कोई इनके साथ ये दिल लगी कर रहा है जो हमेशा कर रहा है। रोज रोज बहुत अच्छा इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक आध और मिसाल हो जाए आपकी तरफ से। हाँ सर मैं कोना कोना ले रहा हूँ। देखिए, इसमें कोना कोना तो नहीं है, लेकिन इसको देखकर आपको याद आया है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ नहीं है मगर फिर भी आपने कहा कोना कोना। जी हाँ, इस्तेमाल करते हैं। पेश कीजिए एक मिसाल। मैंने घर का कोना कोना देख लिया। हाँ, मैंने घर का कोना कोना ढूंढ लिया, ढूंढ कर देखा। मुझे इसके साथ याद आ रहा है, चप्पा चप्पा भी कहते हैं। मैंने शहर का चप्पा चप्पा देख डाला, शहर का चप्पा चप्पा देख डाला, घर का कोना कोना ढूंढ दिया, घर का कोना कोना। बहुत अच्छा आपने याद किया। तो ये सब क्या है? तकरारे लफ्जी कहते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि एक लफ्ज को दो बार कहने से उसमें एक तरह का जोर पैदा हो जाता है, और उर्दू में ऐसे कई अल्फाज हैं जिनके जरिए से हम मुतालिकाते फेल बनाते हैं। तो नाज़रीन, आज के क्लास में हमने देखे कुछ ऐसे मुतालिकाते फेल जिनका ताल्लुक आदाद या नंबर से था, और कुछ ऐसे मुतालिकाते फेल जिनका ताल्लुक सबब से था। इसके अलावा हमने देखे कि तकरार लफ्ज़ी से किस तरह मुतालिकाते फेल बनते हैं। अगली क्लास में हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उर्दू ग्रामर का एक और नया और सहल सबक लेकर। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले यहाँ बनाए हैं उन्हें लिखिए, पढ़िए, सीखिए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।